A boy covers a distance of 25 kilometers in 4 hours, partly on foot at the rate of 3.5 km per hour and partly on cycle at the rate of 9 km per hour. Find the distance covered on foot. टोटल डिस्टेंस ये बॉय कितना कवर कर रहा है? उसमें से कुछ चल के कवर कर रहा है और कुछ साइकिल पे कवर कर रहा है. सो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट द डिस्टेंस covered by the boy, body लिख रहा हूँ, boy, let the distance covered by the boy on foot be x kilometers. Therefore, distance covered on cycle is equal to Prajakta. Total, very good, 25 minus x kilometer. Okay. Now, case 1 and case 2, this is how you need to figure it out. ठीक है. Case 1, the distance, let's say d is equal to x kilometer. What is the speed of case 1? जब वो चलता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 3.5 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे स्पीड आएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर. केस 2 में डिस्टेंस कितना है? 25 माइनस एक्स. ओम, कैन यू टेल मी केस 2 में स्पीड कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर. सही है. डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों आ गया. अब हम लोग टाइम निकाल सकते हैं. टाइम का फॉर्मूला बताओ बेटा. Sure. Speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. ठीक है. So distance is x upon speed is 3.5 and you get hours over here. And here what will be the time in the second case, Prajakta? No. 25 minus x upon 9. Distance upon speed. So this is t1 and this is t2. What is t1, t2? T1 is the time taken while walking. T2 is the time taken on bicycle. ठीक है. Now we have to make equation. Now the total time is how much? So the sum of these two will be how much? 4. So x upon 3.5 plus 25 minus x upon 9 is equal to 4. This is your equation which you have to solve. So देखो अभी ओम तुम्हारी गलती मैं बताता हूँ. ये सॉल्व करके बताता हूँ मैं तुम्हें. तुमने क्या किया? सब में x ढूंढ के छोड़ दिया आंसर. ना स्टेटमेंट लिखा ना कुछ. और कृष्ण ने भी वही किया. सेम चीज. तुमने तो एटलीस्ट सारे सम किए. कृष्ण ने कुछ 6 सम करके छोड़ दिया है. उसमें भी 2 डाउट है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू फाइंड x इज नॉट द फाइनल आंसर. इसको सॉल्व करना है आगे. x तो ढूंढना ही है लेकिन आगे भी सॉल्व करना है. कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ. सो दिस इज x अपॉन 3.5.
एंड 25 माइनस एक्स अपॉन 9। पहले तो 3.5 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए पहले दोनों होल नंबर्स होना चाहिए। सो व्हाट आई डू इज आई राइट इट लाइक दिस, 10x अपॉन 35 प्लस 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 4। 9 और 35 का एलसीएम क्या होगा? 9 इंटू 35, क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 के फैक्टर है 3 इंटू 3 और 35 के फैक्टर है 5 इंटू 7। देर इज नो कॉमन फैक्टर, सो यू विल मल्टीप्लाई 9 हियर एंड यू विल मल्टीप्लाई 35 हियर। सो 9 इंटू 10 90x and 35 bracket 25 minus x the whole upon 35 into 9। 35 9 जा कितना होता है? 315। Correct, 315 is equal to 4. So you have 90x plus 35 times 25 कितना होता है? 35 into 25, $855, 875, sure. 875 minus 35x is equal to 4 times 315. So 90 minus 35 is 55x, right? Plus 875 is equal to 4 into 315, that is 1260. So 55x is equal to 1260 minus 875. Get me the answer, please. 1260 minus 875. Three. So x is equal to 385 divided by 55. 55 sevens are? Yeah. Right? Sure? Yeah, so 55 sevens are 385. So x is equal to 7. So this is not the final answer. This is just the value of x. What they are asking is find the distance covered on foot. Now, what is the original statement? Let the distance covered by boy on the foot be x kilometer. So you will write the statement, final statement. Therefore, इसके बिना आंसर नहीं गिना जाएगा, ठीक है? Distance covered on foot is equal to 7 kilometer. Distance covered on foot is equal to 7 kilometer. मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया just to make it up for my last class if you did not understand कि तुम्हें पूरा सॉल्व करना है. That was very clear, but still. Puneet starts from his home to school on cycle at 10 kilometer per hour. Sir, Yes. so the last answer was distance on foot was 7 kilometer, right? Yeah. Okay, sir. Puneet starts from his home to school on cycle at 10 kilometer per hour and reaches 4 minutes earlier than the scheduled time. However, if he cycles at 8 kilometer per hour,
he is late by 5 minutes. What is the distance between his residence and the school? शुरुआत कहाँ से करेंगे? ओम, ये जो लास्ट स्टेटमेंट रहता है ना, वहीं वहीं से शुरुआत होती है. दैट इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. व्हाट शुड आई राइट? Kilometer. Let the distance between his residence and school be x kilometers. ठीक है, इसमें भी हम लोग केस 1 केस 2. केस 1 में क्या होगा देखो. पुनीत स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल ऑन साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर. और स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम का फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x बाय 10 आवर्स. इसको लगेगा, है ना? किलोमीटर और आवर्स है तो टाइम आवर्स में ही आएगा. केस 2 में डिस्टेंस सेम है x किलोमीटर, लेकिन स्पीड कितनी हो जाती है? 8 किलोमीटर पर आवर. तो केस 2 में टाइम कितना लगेगा? x बाय 8 आवर्स. दोनों केस का टाइम आ गया. अब यहाँ पे क्या बोला है कि if he in the first case he reaches 4 minutes earlier than the scheduled time, and in the second case he reaches 5 minutes he is late by 5 minutes. मतलब अगर शेड्यूल टाइम 7 o'clock का है तो फर्स्ट केस में वो 7 o'clock से 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, और सेकंड केस में 7 o'clock के 5 मिनट्स के बाद पहुंचता है. तो So ये sir, can it be x by 10 plus 4 is equal to x by 8 minus, sorry, x by 8 minus 5? नो, x by 10 plus x by 8 is equal to Okay. how many? What is the difference between both the cases? एक में 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक में 4 मिनट, सॉरी, एक में 4 मिनट पहले पहुंचता है, दूसरे में 5 मिनट बाद पहुंच रहा है. सो व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन दीज टू? हाँ यार, सो एक्चुअली 9 minutes. या 9 मिनट्स इज द गैप. तो प्लस नहीं करना है. यू नो, आउट ऑफ दीज टू विच इज द लार्जर टाइम? सबसे ज्यादा टाइम कौन सा है इसमें दोनों में से? केस 2 इज लार्जर टाइम ना. व्हाई इट इज लार्जर? Denominator is smaller. Yeah, so denominator is smaller and is taking 5 minutes extra. तो इन दोनों में से अगर x minus 8 is a larger time than x minus 10, तो what is the difference between them? 9 minutes. लेकिन ये तो दोनों hours में है और ये minutes में है, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय. तो अब ये हो गया hours में कन्वर्ट. मतलब द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टाइम्स इज 9/60 मिनट्स, सॉरी 9/60 आवर्स. ऐसे करके इक्वेशन बनेगा. दिस इज योर इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व एंड फाइंड वट एवर यू हैव टू फाइंड एक्स बेसिकली एंड राइट द स्टेटमेंट. सो सिर्फ इतना इक्वेशन बना के छोड़ दो, फाइनल आंसर कॉर्नर में लिख लो जैसे हम करते थे पहले, so that you can solve it later. These are all the problem जो अभी आज हम लोग कर रहे हैं. Those are speed, distance and time problem. The problems based on the concept of speed, distance and time.
these are little complicated क्योंकि इसमें केसेस होते हैं अलग अलग, केस 1 केस 2, right? Shall we go to the next question? चलो. So this is a very classic problem, upstream downstream problem. Upstream downstream का मतलब क्या है? Suppose एक river है, the river is flowing in a certain direction. हमेशा याद रखना, if the river is flowing in this direction, so this direction is downstream direction because the river is flowing in that direction. तुम अगर डाउनस्ट्रीम स्विम करोगे या बोट चलाओगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू बिकॉज तुम्हारी स्पीड और वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी. लेकिन अगर तुम अपस्ट्रीम जाओगे, दिस इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, तुम स्लो हो जाओगे. तुम्हें लगता है कि तुम बहुत एफर्ट कर रहे हो आगे जाने का, लेकिन तुम जा नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी स्पीड माइनस हो जाएगी. तुम्हारी स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी. तो अगर तुम यू आर गोइंग इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर, सो योर नेट स्पीड विल बी 5 minus 3, that is 2 kilometer per hour. And if the speed of the river is 5 kilometer per hour and your speed is also 5 kilometer per hour and you are trying to go upstream against the flow, you will not be able to go anywhere. तुम उधर ही स्विम करते रहोगे. और अगर तुमने स्विम करना बंद कर दिया तो तुम रिवर के साथ फिर डाउनस्ट्रीम चले जाओगे. ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स. तुम्हारे एक्सरसाइज में भी डेफिनेटली होने वाले हैं. तो तभी मुझे चाहिए कि तुम डाउट में इसको ना छोड़ो, तो तुम्हें इसके साथ लड़ना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. इफ यू डू नॉट फाइट, इफ यू गिव अप, नहीं आ रहा है, डाउट है, छोड़ दिया, एंड मिनट होमवर्क करोगे, देन मेरा ये जितना भी सिखाए हुए इंस्ट्रक्शंस है ये फेल हो जाएंगे. सो तुम्हारे हाथ में मेरे इंस्ट्रक्शंस को फेल करना है या फिर उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है. टेक्निक मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सिचुएशन अलग होगी जब तुम होमवर्क करोगे. तुम्हें ये टेक्निक उस सिचुएशन में अप्लाई करनी है. अप्लाई करके अगर करेक्ट आंसर निकल गया तो तुम एग्जाम में भी कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम में भी वही होगा, फिर यू विल गिव अप. ठीक है, ध्यान से समझना ये मैं जो बोला मैंने. ओके, सो अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन two ports in 4 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. The speed of the stream is 2 kilometer per hour. Find the speed of the steamer in still water. मतलब अगर स्ट्रीम नहीं होती, स्टिल वाटर होता, तो स्टीमर अकेले की स्पीड क्या होती. तो शुरुआत कहां से करेंगे. स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. लेट the speed of steamer in still water be x kilometer per hour. Let the speed of the steamer in still water be x kilometer per hour. यहां से होगी शुरुआत. ठीक है, अब देखो दो केस बनेंगे इसमें. एक केस होगा डाउनस्ट्रीम वाला, दूसरा केस होगा अपस्ट्रीम वाला. देयर आर 2 केसेस. डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना होगा. डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हम लिखेंगे ही नहीं. डिस्टेंस क्यों लिखेंगे, हम शुरुआत करेंगे स्पीड से. ठीक है, एक बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और वो जा रही है डाउनस्ट्रीम. बताओ उसकी स्पीड.
एक बोट है, उसकी ओरिजिनल स्पीड स्टिल वाटर, स्टिल मतलब जहाँ पे Sir, so it will be 2x नो kilometer per hour. Oh, okay. नो 2 plus x kilometer per hour. x plus 2. So what we Okay. have done is we have added the speed of the stream with the speed of the boat. Why? Because it is going downstream. तो उसको help होगी ना, तो it will be x plus 2 kilometer per hour. And how much time does it go? Does it take to go downstream? 4 hours. तो यहाँ पे time मिल जाएगा कितना? 4 hours. तो we can find the distance. Distance का formula पता है? Distance is equal to speed into time. Speed into time. So speed है x plus 2 into time है 4. ये हो गया तुम्हारा distance. कौन सा distance? Downstream distance. Now let's talk about upstream. Upstream speed. Can anybody help me? Very good. X minus 2 kilometer per hour. Why? Because when this boat is going upstream, it will go against the flow of current, river flow. So the flow of the river or the speed of the flow of the river will be subtracted from the speed of the boat, x minus 2. और upstream जाने के लिए उसको कितना time लगता है? 5 hours. Natural. ठीक है, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 5 ब्रैकेट x minus 2 किलोमीटर. 5 ब्रैकेट x minus 2 किलोमीटर. सही है? डिड वी फाइंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस? ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? टेल मी, हाउ विल वी फॉर्म द इक्वेशन? देखो इसमें, Sir, यस, sir, why the distance in both the cases are different? Like 5 bracket x minus 2 is there, and in the first case it is x plus 2 bracket into 4. yeah, because in both the case speed is different and time is different, and distance is speed into time. Sir, but can't we write 4 bracket x plus 2? It is going upstream, its speed will be different, it is taking different time to go upstream, Okay. Okay, sir. so its distance will be different. It looks different, it is not different. You are right, the distance will be same, because in the question if you see, यहाँ पे clearly लिखा है it covers the same distance. इसका मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम है, और उसी से हमारा इक्वेशन बनेगा. सो आर इक्वेशन विल बी 4 ब्रैकेट x plus 2 is equal to 5 bracket x minus 2. This is our equation. Okay, sir. From here you will get x, which is the speed of steamer in still water. Don't solve it, okay? Just write the equation and finish. No solving. Are you solving it? Next question. Question number 10th. The difference between squares of two consecutive numbers is 95. Find the numbers. This is important, okay? The difference between squares of two consecutive numbers. First of all, what are consecutive numbers? ये मैंने पहले भी पूछा हुआ है. तुम्हें ही पूछा था और राज ने आंसर दिया. कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर. 5 6 7 8 दीज आर कंसेक्यूटिव. तो कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स है? 2.
let the two consecutive numbers be x and x plus 1. Let the two consecutive numbers be x and x plus 1. अब क्या बोला है, इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस नहीं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। इनमें से बड़ा कौन है? तो x प्लस 1 का स्क्वायर भी बड़ा होगा, और उसका डिफरेंस हम लोग ले लेंगे x से। सो x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 95। सही है। लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 95। सही है या गलत है ये? बिल्कुल सही, यही तुम्हारा इक्वेशन है। बट यू विल से दैट अरे यहाँ तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ तो पावर 2 है। लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं, इफ यू एक्सपांड दिस आई विल डू दैट फॉर यू। x प्लस 1 का एक्सपांशन क्या है? ओम स्क्वायर। x प्लस 1 द होल स्क्वायर कितना होगा? सॉरी, प्लस 1 स्क्वायर माइनस a प्लस बी द होल स्क्वायर में माइनस कहाँ आता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर बताना जल्दी जल्दी। तू ऐसे पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें कोई ऐसा मतलब अजीबो गरीब 12th का क्वेश्चन पूछ लिया हो। a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू डोंट नो, नन ऑफ यू नो दिस। तुम्हारी बुक में देखा हूं मैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला चैप्टर हुआ नहीं अभी तक तुम लोग का, तो फिर याद नहीं है। प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 95। तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 95। इसको आगे सॉल्व कर लेना है, तो x मिलेगा और x प्लस 1 मिलेगा, तो दोनों नंबर मिल जाएंगे। भूल गया आइडेंटिटी, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। I'll tell you the chapter number as well. Algebraic identities है चैप्टर नंबर 13 या कुछ। ओ डन। या 10 ही क्वेश्चन है क्या? सॉल्व एग्जाम्पल चेक कर। ओनली 10। ओके, अब मुझे बताओ तुम्हारे एंड पे कि व्हाट आर द डाउट्स विच यू आर फेसिंग। जैसे पहले 15 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था, व्हाट आर योर डाउट्स फ्रॉम दोस 15 क्वेश्चंस? लाइक कोई ऐसा ट्रिकी था? बताओ बताओ। हाँ बोलो। हाँ, ऐसा डाउट तेरे को भी एक आया है जो तूने छोड़ा है। डिवाइड है ना, डिवाइड अ नंबर इनटू टू पार्ट्स, या सेपरेट, क्या लिखा है? हाँ, सेपरेट बोला है, मतलब डिवाइड मतलब स्प्लिट करना है। तो उसमें तुम्हारा नंबर क्या है? हाँ, तो 25 को जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, एक पार्ट x होगा और एक 25 माइनस एक्स होगा। अगर 178 को सेपरेट करेंगे दो पार्ट में, तो एक x होगा, एक 178 माइनस एक्स होगा, और फिर तुम्हें जो चाहिए कर सकते हो। हाँ, आगे तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट यू हैव टू डू देन? 7 times the first part added to 5 times the second part makes 139. आप समझा? हाँ। नाउ यू टेल मी योर क्वेश्चन इन द। एक मिनट, 6 वही वाला है ना, सेपरेट वाला? हाँ, 6 मोर देन।
नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। कैन यू टेल मी, पूरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। नहीं नहीं, पूरा क्वेश्चन 178 वाला। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। हम्म। देख इधर देख, इधर देख, वो छोड़ दे। सेपरेट 178 into टू पार्ट्स सो दैट द फर्स्ट पार्ट इज मतलब इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इज इक्वल टू इज 8 लेस देन ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। मतलब सेकेंड पार्ट को डबल करके उसमें से 8 माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट पार्ट मिलेगा। तो ऐसे तुम्हें ब्रेक कर करके इक्वेशन बनाना है। और क्या डाउट है? हाँ तो दूसरा पूछना। 6 more than 1/4 of a number is 2/5 of the number। हो गया। 6 more than 1/4 of a number is equal to 2/5 of the number x। हाँ तो वही मैं सिखा रहा हूँ। समझा? अभी समझा टेक्निक? उसको अप्लाई करो और करो तो इजी हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? तो अभी करना क्या है? खत्म। पूरा तुम्हारे हाथ में अभी। तुम कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर है। यू हैव टाइम ऑल्सो, यू कैन शिफ्ट लिटिल बैक, तो आगे क्लास चलती रहेगी। मैं तुम्हारे ग्रुप में लिख देता हूं कि क्लास विल बी ओवर व्हेन आई से इट ओवर। हाँ और क्या।